को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। Receive some message. That's since I just wanted to talk about properties, then I decided to ignore the incoming call. It is possible that some people are not in hectic schedule that any kind of good business related event can arise at any moment. And we are a dumb person, that's why we don't assume that two instances can be correlated. My aunt or the wife of that person is not responding. It is the same person again. It is possible that she will inform me in the meantime, but that doesn't matter. What matters is others can assume in a different manner. My perception was already exposed in that there any kind of foul play from our common enemy, the person might have tried to play pranks and that to intensity. It's very common. Otherwise, we will inquire if the marriage of your son has already been fixed. It's only 19. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कुछ समय पश्चात It is very funny. There is intention to talk to him. They would not have ignored. It means because they are not taking any chances or trying to test my feelings and reactions without any reason. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है Talk to prospective person itself. What is the important? And let's see,
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है There are a lot of people who are conspiring against me. It is possible that my own sisters are also involved. But it doesn't matter. If I am reckless, no one can. In all probable cases, it is not possible all the family members will not pick the call. I didn't respond because that person was trying to distract me. According to the past talks which I had regarding once about 8 or 9 years ago, that person said, I want to buy a property in Panchkula after my retirement. I want to live with my youngest son. And I replied that you should plan your son's life in Delhi itself. Once he is married, then you can plan afterwards. Taking that into consideration, I kept on interacting through WhatsApp. That person might be interested to buy a property for his son and want to retire from his business. Then I replied that I'm not sure about the prospective plan which you are talking about. Then I replied humbly that you should buy properties in Solan or Pinjore. I don't want to suggest any property here because the plan might be a fraudster plan only. Then he said, an informer from Kerala who is staying in Panchkula reached my office and kept on convincing to buy. Obviously, I was continuation of the last interaction. I replied that it is possible that first steps. Then he called after 4 days. I ignored that call yesterday. Of course, I should be ignoring that call. I was totally righteous in that. Why should I accept call if I am always positive in it? You should consider your family's prior to this kind of investment or retirement. Obviously, I thought that he is planning to buy a house for his youngest son and he want to live alone in an isolated place. Obviously, I ignored that call. Now they are ignoring. That means any kind of foul play was definitely there. Otherwise, it is a rarest possibility that on Monday he is talking about investment plan and on today she called other member of my family about that good news about his son's marriage. Let's wait for 5 minutes. It is possible that everyone might be driving. I call at about 9:11 p.m. Then I will my initiatives. Then if they will visit here, then only I will consider any kind of appearance in auspicious marriage or whatsoever. Otherwise, it is not good to play pranks with other person and then invite or inform about the marriage ceremony. It was alright to futuristic nature. It is possible that they will call again and then they say, okay, you were not picking our calls all the time, you ignore our calls due to these reasons, we don't invite you for the pre-wedding ceremony, and obviously you should have been invited at the main function only. And we used to call your sisters only, they are too humble in nature, they pick our calls too easily.
So in short, they were distracting. It's 9/11. I am also not too desperate to visit anywhere. Or it is possible that they are watching my live name also and they know that he is live and he is trying to interrupt us. Any kind of possibility can't be ruled out. Otherwise also anyone can spot. Once upon a time the recording switched on automatically. This person's mobile was not on. Hello? 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 हेलो हाँ जी सर नमस्ते क्या हाल है? नमस्ते। और मुझे मैं फोन पता लगा रहा पता चला फिर आज सुबह मेरे को मुबारक हो इंद्रेश की शादी तय होगी ना हाँ, हाँ। उठा नहीं रहे फोन ड्राइव कर रहे थे क्या हैं? ड्राइव कर रहे थे नहीं नहीं, वो घर में ही है, कनेक्टिविटी नहीं आती है, पता क्या चक्कर है जियो में। तो ये भी तो बड़ी मुश्किल से मिला है फोन अभी भी हैं? अभी भी मुझे बड़ी हाँ। मुश्किल से मिला है कौन हाँ वही है, घर पे पता नहीं वहाँ नहीं बाहर गली में जाओ तो यहाँ भी कनेक्टिविटी थी पर टावर हट गया हमारे घर के सामने एक टावर था ना तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम वो हट गया तो वो अच्छा वो भी है। नहीं हमारे यहाँ सुंदर विहार में भी अच्छे हमारे तो या तो सॉल्व हो बाहर गई गेट के उधर जाओ या गेट के बाहर जाओ या इधर जाओ। तो मैंने तो सबसे बात करनी थी तो फिर तो इसीलिए मैंने 9 बजे फ़ोन करा मैं सबसे बात हो जाएगी और तो आपसे नहीं हो पाएगी और सुनाओ। नहीं मैंने 9 बजे फ़ोन करा मैं कहा सबसे बात हो जाएगी सब घर में ही है ना हाँ हाँ, नहीं मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो चाची जी का भी नंबर नहीं मिल रहा चलो मैं घर जाके भी बात कर रहा था, मेरे को मेहमान आए होंगे। नहीं अभी तो कह रहे हो कनेक्टिविटी नहीं अभी कह रहे हो बाहर आए हो अभी तो कह रहे हो कनेक्टिविटी नहीं अभी कह रहे हो बाहर आए हो अरे कनेक्टिविटी तभी तो बाहर आया हूँ, तभी तो बात हो पा रही है। तो बात करते करते चले जाओ ना बात रोड करते पे चल रहा हूँ तब बात हो रही है। नहीं बात करते करते घर के अंदर चले जाओ ना तो चालू रहेगा तो और क्या तो चालू रहता ठीक है, चल देख के ये भी ट्राई करते हैं। ट्राई क्या चालू करना रखना है, मैं तो चालू रखना। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है मैं तो बहुत देर से एक चालू रखना है। अरे श्वेता हेलो हाँ चाची नमस्ते मुबारक हो हाँ नमस्ते और तेरे को भी भाई तेरा मेरा मैं सबने बड़ा फोन मिलाया हाँ फोन मिलाया वो चाची मैंने जानबूझ के नहीं उठाया वो चाहता ही कोई प्रॉपर्टी हाँ नहीं वो कहीं गया होगा या अभी सो गया होगा इसलिए अरे नहीं मेरी बात तो सुन लो ना मैंने इसीलिए इसी टाइम फोन किया है चाचा ही कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे 11 तारीख को अच्छा तो मैंने कहा प्रॉपर्टी यहाँ पर ये फ्रॉड है यहाँ मत खरीदो सोलन में खरीद लो पिंजौर में खरीद लो और देख लो जब आओगे तब इस तरह से बात हो रही थी ना तो मैंने कहा वो बंदा शायद दोबारा से फ़ोन कर रहा होगा तो उसको दिखाना होगा ज़्यादा इन्हें कि देखो वो नहीं उठा रहा फ़ोन तो मैंने इसलिए उठाया ना समझे नहीं समझ गए फिर मैंने अगला तो किया फिर मैंने मैं तो सुबह करूंगी फिर मैंने कहा सोया है कब हुई है तय कब हुआ है रिश्ता ये परसों पहले देख ना ये 2 दिन पहले आए हैं वो लोग उन्होंने देखा दोनों बच्चों ने उनको पसंद आया तो बस रात को आ गए कहते हैं मुझे करा दे मुझे करा
वो मैं समझ गया, वो इसीलिए कंफ्यूजन होगी ना। मैंने कहा कोई कोई बंदा पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है चाचा जी को हाँ प्रॉपर्टी नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी के लिए कोई कह रहा है ना खरीद ले तो पूछ ले चाहे पता कर ले चाहे। हाँ 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 तो हाँ मैंने कहा वही बात करनी होगी, तो उसके साथ बैठा होगा हो सकता है वो, हाँ हाँ तो फिर आपने अब कह देंगे वो और नहीं फिर उठा रहा। हाँ तेरे के ठीक है बेटा हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। राजा हैं अब आइयो ना यहाँ पे, मैं बधाई देने आई हो ना मेरे को। तो वो तो आना ही है। मैं नानी को भी इंद्रेश को भी फोन कर रहा हाँ हूँ, मुझे तो अभी पता चला है, 8 बजे पता चला है मुझे। हाँ तो मैं कहा 9 बजे इतना फोन सुबह करूँगा, फोन हाँ सबसे बात हो जाएगी ना, 9 बजे फोन। बस हाँ हाँ बस परसों ही ना, बस वो आए थे रात को। कहाँ ये बस कहाँ थी छपरा के लड़की, कहाँ थी? कलकत्ते। अच्छा, कोई जान पहचान में है या वैसे मैट्रिमोनियल से? हाँ मेरी वो है ना चाचा जी की लड़की है ना सोनीपत, किसके? वो नहीं थे क्या नाम है उसका, ये चंचल गांधी नहीं थे कलकत्ते, तो बहन ना हाँ वो सीमा उनकी बेटी की लड़की है। सीमा वगैरह की मम्मा जो आती है, जो हाँ जिनका हाँ हाँ नीचे हाँ उसकी है, क्या जिनका नाम है, क्रॉकरी का काम है। हाँ 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 उसकी ज्योति की जो उनकी लड़की, उनकी मतलब चंचल गांधी की बेटी है, बेटी की बेटी है। अच्छा, उनकी मतलब दोती होगी ना। हाँ हाँ चंचल गांधी की बेटी है। वो आती तो रहती है उसकी बेटी भी, और पहले हाँ 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 पहाड़गंज रहती थी हाँ एक ये कलकत्ते रहते हैं, बस बाकी सब दिल्ली रहती है ना। हाँ, एक पहाड़गंज ये रहती है। लड़का हाँ बस एक हाँ ये अब ये जो अशोक विहार आगे पहाड़गंज हाँ वो अशोक विहार आ पहले गया ना। पहाड़गंज से। हाँ 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 पहले पहाड़गंज रहती थी, हम्म, शादरा भी रहती थी। हाँ 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 और चलो मुबारक हो बहुत बहुत मैं। हाँ हाँ आई हो गया ठीक है। हाँ ये तो मैं समझ गया था, मैं कहा कोई यही बात होगी तो इसलिए फोन कर रहे हैं, ये तो मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि रिश्ता तो देख ही रहा है, तो फिर तो ठीक है। इंद्रेश को भी कन्वे कर देना, मैंने फोन किया उसका, वो 7-8 वाला है ना लास्ट, वही नंबर है ना, वही नंबर है ना लास्ट का 7-8 जो है इंद्रेश। हाँ तो वो पता नहीं मिलेगी नहीं, लास्ट में 8-9 है ना, तो वो भी नहीं मिला, पता नहीं, मैंने कहा फिर ड्राइव कर रहे होंगे, हो सकता है इकट्ठे होंगे। हाँ नानी से बात कराते दे, नानी से बात कराते अभी आया बात कराते। कनेक्टिविटी कह रहे नहीं रहती अंदर, पता नहीं बता रहे हैं। हेलो हाँ इंद्रेश, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपको भी वो वीडियो भी देखना, मैंने तुम्हारा लास्ट में रिकॉर्ड करा था जो है। हाँ हाँ जब हम मिले थे ना, तो उसकी अमन की बहन की शादी में। अंजन जी और कब है, कब कर रहा है शादी? अब लिख लेगी, अभी तो देखते हैं, हम लिखते हैं। चलो बुला लेना। हाँ हम जूस अब क्यों नहीं, पहले आप पहले लो मैंने ये नंबर आपका जो 8-9 वाला नंबर है ना, वो भी मैं मिला रहा था, पता नहीं क्यों नहीं। अब वो है कि किसके पास बैठा होगा, किसी के पास, तो वो फोन तो किसी के बैठा होगा, तो मैं फोन पे वो मैंने देखा बाद में कट गया। चलो स्टोर कर लेना मेरा नंबर। हाँ मेरा नंबर में देखा था, लेकिन वो होता कि किसी को बैठा होगा तो मैं बात नहीं करता हूँ। परसों चाचा जी ने किया था, मैंने सोचा पता नहीं कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टी तो अभी तो प्रॉपर्टी कोई यहाँ पर लेने में मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सोलन वगैरह पिंजौर में लेना हो तब तो ले सकते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि पहले हमारी बात हुई थी 6-7 साल पहले। हाँ 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 वो होता है, पापा तो इससे कर रहे नहीं, हैं। फिर मैंने ये सोचा कि वो बंदा साथ में बैठा होगा जो फोर्स कर रहा है, तो इसीलिए फोन कर रहे हैं कि फिर इग्नोर ही करने में फायदा है ना, वो पीछे पड़ा होगा कि प्रॉपर्टी ले लो यहाँ पर ये ना ये फ्रॉड है, ये लेना होगा ना तो पिंजौर साइड लेने का फायदा है, या फिर सोलन सोलन हमने समझ गया कि कहीं और नहीं, कहीं और की बात नहीं है, मतलब यहाँ जो है ना, ये जो रोड बनने का प्लान बना रहे हैं, ये सुखना लेक में रोड जाएगी, अब वो पक्का तो है नहीं रोड, अगर रोड का प्लान कैंसिल हो गया तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं वहाँ। अभी जो रोड बनी नहीं है उसके बेस पर 1.25 लाख रुपए गज रेट बता रहे हैं, तो वो रेट ज्यादा है।
₹1.25 लाख इसीलिए मैंने फिर फोन नहीं उठाया, मैंने फोन उठाया ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा वो बंदा परेशान कर रहा होगा, इसीलिए फोन कर रहे हैं। फिर कल की तो बात है, रात की, परसों रात की तो बात है। फिर कल फोन आया कि वो उसका रिश्ता तय हो गया, इसलिए फोन कर रहे हैं। मैंने कहा बाई चांस दोनों काम बातें मिक्स हो गई। तो अच्छी बात है। हाँ चलो, काम हो गया। हाँ नहीं काम तो वो तो होना ही है, समय से सारे काम होना। ठीक है, बुला लेना फिर। हाँ हमें बता देना, फोन कर देना, वो नंबर स्टोर कर देना। हाँ जो पक्का। मुझे तो बुलाना है, तो पार्टी करनी है। एक तो देख, तेरे को लैपटॉप दिलाना है, मुझे मोबाइल दिलाना है, और पार्टी तूने हमारी अलग करनी है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके बाय। ठीक, बाय बाय। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात हेलो, हाँ जी, सहारनपुर आए हो? मैं कह रहा हूँ सहारनपुर से बोल रहे हो? आवाज तो बहुत धीरे आ रही है, पहले ही कट जाता है। दोबारा करो, एक बार आप करो। हेलो, हेलो। हाँ अब आई आवाज। हाँ आ रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना? ठीक हो? कम आती है, थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है कटती भी है। फोन चेंज नहीं करा? हाँ जी, फोन चेंज नहीं करा, टूट गया था ना? नया है, पता नहीं क्यों। और पता नहीं, आवाज वैसे भी कम है फोन की ना। रमित का टूट गया था। रमित का क्या? रमित का मोबाइल टूट गया था ना? वो तो रमित का टूटा था ना, मेरा तो नया है, मेरा भी नया है। अच्छा, उसने ठीक करा लिया? उसने भी नया लिया था, वो तो ठीक हुआ ही नहीं था। अच्छा, वो तो पानी में गिर गया था ना, ना डमोले में। हाँ, डमोले के अंदर ही गिर गया था ना, मोबाइल समेत। रमित ही, रमित गिर गया था ना वो तो 5-6 महीने हो गए ना? हाँ, बड़े महीने हो गए। हाँ, ज्यादा हो गया, जुलाई की बात। हाँ हाँ, याद नहीं है कब की बात है। हाँ, और सुना, तेरी तबीयत ठीक है? फोन किया था आपने सुबह? हाँ, मैंने फोन करा था, पता आज ही करा था सुबह। ऐसे कटता है जैसे अभी कट रहा है, ऐसे कट जाता है वो फोन। पता नहीं। हाँ, सारा फोन चेक किया कर था, लिया। बिजी जा रहा था आपका। नहीं है, पार्क में जाके सारा चेक करा, सारी सेटिंग्स मोबाइल की ठीक है, कट ही जाता है वो। पता नहीं क्यों, तब तो बिजी जा रहे थे आप, बिजी किसी से बात कर रहे होंगे। बिजी था, फिर मैंने बाद में करा नहीं।
और सुना ठीक है। नहीं, बात तो किसी ने नहीं कर रहा, मैं कोई किससे करनी है मैंने? अच्छा बस ऐसे आ रहा था बिजी है। ना, किसी से नहीं बात, कोई किसी से, मेरा फोन तो यूज ही नहीं होता। अच्छा अच्छा। बस 10 सेकंड 12 सेकंड, बस इससे ऊपर कभी यूज नहीं होता। और कहाँ गए थे, मंदिर गए थे किसी? मंदिर तो गया था शिवरात्रि वाले दिन। कहाँ पर, लोकल ही? उसके बाद कल गया था शनि मंदिर, और परसों शुक्रवार को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शुक्रवार को जो फोटो डाली थी ना, वो हाँ जी हाँ जी। वो थी शनि मंदिर, यहाँ से है 8-9 किलोमीटर दूर है। ओ, वो खेतों में बना हुआ है? 2011 में बनाया था। खेतों में बना हुआ है, खेतों में? वो पहले तो जंगल था, वहाँ चीते शेर सब होते हैं। अच्छा। लेकिन अब तो सारे वो जंगल खत्म हो गया, सारा कट गया सारा जंगल। हाँ। तो फिर लोगों से बात करी मैंने, वो कि यहाँ पर तो चीते शेर सब होते थे। कहता हाँ पहले तो दिखते थे, अब अच्छा अब तो धीरे धीरे अंदर चले गए ना, सारा होटल बन गया सारे। अच्छा अच्छा। चलो। और मेहुल ठीक है? मैं तो पहले से कह रहा हूँ ना, 2007 से। उसके चाचे का मेहुल उसका चाचा है ना, ठीक है मेहुल। जो मंदिर है ना, उसका चाचा जो है ना, उसका यहाँ पर है मंदिर, गग्गर के पास, बिल्कुल पंचकुला में। आवाज कटती है, पता नहीं और मेरा फोन खराब 2011 है में या वहाँ क्या इसने 2011 में वहाँ बनाया, ये मंदिर तो पुराना ही है। है। मैंने कहा मेहुल ठीक है? हाँ, काम घर से ही कर रहा है? आपने वैसे किया था फोन? और मैंने वैसे ही करा था। हाँ नहीं हाल ठीक है, चाल पूछ, और सब ठीक हाल है? चाल पूछ। आपकी वैसे ही करा था। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी। आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, चल रहा है, तो ऐसे ही होती है। वो घुटने की नस में नस चढ़ जाती है, जब मर्जी खड़े खड़े घुटने का तो मर्जी आपको चौकी बताया था कल भी, एकदम से। मैं हाँ तो जी एक साइकिलिंग तो। करता हूँ ना, घुटने में वो फ्लेक्स डाल लेता हूँ, जैसे ऊपर पहाड़ों में कल भी गया था, हाँ परसों हाँ जब आ रहा ठीक है, और क्या। तो ये फ्लेक्स ठंडी डाले बड़ी। होते। हाँ। खाली घुटने पर डालते हो? 240 रुपये का लिया था। हाँ। और ना बाहर गई थी बनारस मुझे बताया मंदिर नहीं में? ना उसने, हाँ बनारस अयोध्या हाँ, इलाहाबाद, फोटो डली हुई थी, अयोध्या हर जगह घूम इलाहाबाद के आई है, बस गई लखनऊ, ये थी। सब गई होगी पता नहीं, फिर वापस आके बताया था मुझे उसने। हाँ नहीं, मुझे एक बार कह रही थी जब मैं गया था ना लंदन। हाँ लंदन गया था ना, कहाँ गया था? हाँ। तब मैंने फोन करा था, कह रही मेरे वो सब कह रही है प्रयागराज चलो। तो मैंने आंसू कहा हमारे नाम की डुबकी लगा लेना। कहती है मैं सबके नाम की डुबकी लगाते लगाते बाहर ही नहीं निकलूंगी। फिर बाद में यहाँ प्रोग्राम तो बना होगा बस जा रही होगी सब कुछ। जगह। हैं? वो शादी पर गई थी दिल्ली, दिल्ली में मासी की लड़की की, मासी की? मासी के की लड़की है ना, उसकी शादी थी। मेहुल की मासी की लड़की? नहीं, उसकी अपनी मासी की। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वापस आई तो किसी फ्रेंड ने प्रोग्राम बना के रखा होगा, तो इसलिए मुझे भी नहीं बताया उसने, फिर बार बार चलो से। कोई नहीं, फ्रेंड के साथ घूम आइए, कोई बात नहीं। बार ये बार सारे से मंदिर चली हो गई। आई, अच्छे दर्शन कर आई, ठीक है, जिस और पैकेज क्या। में लेके आई अयोध्या भी हो आई, अटैची, वो अटैची नहीं बरसाना भी करनी हो थी। आई, बरसाना। और कहाँ वहां में लिखा होता, मुझे नजर कम आता है ना, मुझे नहीं पता चलता। आप लोग तो काशी। व्हाट्सएप पर देख हाँ लेते हो नजर सारा कम कुछ, आता तो है। फिर उस हिसाब से बात करते हो, अच्छी बात है। मैं तो व्हाट्सएप किसी का यूज कोई कर नहीं रहा, मेरे तो है नहीं ना कोई, ना आप करते हो। एक आपसे बात होती है, सुमन दीदी से बात होती है। तो ठीक है, और शशि कितनी है, दीदी एक से वो, बेबी है, एक सुमन है, और बेचारी। सुमन बस एक ही बार उसे स्टेटस चेंज होश करती नहीं है। है। भूटान, हाँ। भूटान गई थी तभी उसने स्टेटस चेंज करा, 1.5 साल हो गया। वो रूपाली, अच्छा रूपाली को मिलने के लिए भूटान रॉयल यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। और किसी का पता चलना है, मेरा तो है, मैं तो आस पास ही जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। जो एक बार हनुमान मंदिर गया, जब आपका फोन आया था पिछली बार। तो वहां जो चाची ने तुम्हें फोन करा था, उठाया नहीं था? तो असली बात तो आपने ये करनी है ना। नहीं नहीं, असली बात क्या, बस याद तो करा दूं। हाँ। मुझे तो ये नहीं मुबारक हो, नहीं। हाँ। मैंने वैसे मुबारकबाद। वो हमें भी फोन करा था, फिर मैं बाद में बात कर लूंगी, अभी वो हाँ इधर उधर वो होगा, उसने वैसे ही वो कह रहे तो थे। सारा कुछ हटा, नहीं मैं बाद देखो, में बात कर लूंगी, ऐसे नहीं कह वो भी ने सकता अभी मैं, उठाया नहीं है। ऐसे ऐसे मैं नहीं वैसे ही कह कह रहे सकता थे। कि हाँ क्यों नहीं उठाया। मैंने हाँ। 2 घंटे के बाद बात कर ली थी, मुबारकबाद दे दी, इंद्रेश से भी बात करी। अच्छा, बल्कि वो मैंने, मुझे नहीं उनसे पता अगली हैं, बात। वो मेरे को थोड़ी पता है अगली बातों का, तेरे से पता लगे। तो वो तो उनको तो बल्कि रिश्तेदारी भी नहीं पता। मैंने याद दिलाई कौन है कौन नहीं, जिनको तो नाम भी नहीं पता था, ना सीमा का ना बेला का। अच्छा अच्छा। बेचारे कौन, अच्छा सीमा नाम है, अच्छा बेला नाम है, अच्छा क्रॉकरी का काम करते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो उन्होंने रिश्ता भेजा है, मैं तो बहुत मुबारक हो बस, और क्या।
बड़ी खुशी हुई। अच्छा। हाँ तो फोन और तो उनकी, हाँ उनका क्रॉकरी का काम था। हाँ फोन उनकी तो मैंने लड़की की अब लड़की है। फोन तो मैंने जानबूझ चलो के नहीं फोन तो मैंने जाने का जानबूझ बस के नहीं जो उठाया, तो बस फोन आने की का तो होना था हो गया। अरे जो फोन नहीं उठाया था वही तो बात, मेन बात है, जो फोन नहीं उठाया था। नहीं नहीं, मैं इस वजह से बता रही हूँ, मैं हो सकता है अरुणा ने आपको ना बताया नहीं, हो, वो मैं उस बता दौरान दूं हन्नी हन्नी की उस सिलाई 2 करनी है। घंटे के अंदर वो उन्होंने सबको फोन करे हैं, तो उस 2 घंटे के अंदर मैंने उठाया नहीं। मुझे पता है कि फोन आ रहा है और किस लिए आ रहा होगा, ये भी पता है मुझे। ये भी पता था? अच्छा। ये अच्छा, हमें नहीं पता था किस लिए आ रहा है। नहीं, हमारे बीच में और कोई बात ही नहीं होती, कोई शुभ घड़ी होगी और जो हाँ हाँ कोई तो खराब होगी घड़ी, तो वो तो ऐसा ना, वो तो मैंने हफ्ते से पहले ना बात चल रही थी मेरी रमेश से, अच्छा अच्छा तो हफ्ते से वो फोन कर ही जा मैसेज कर ही जा रहा था मुझे, तो किसी और काम के लिए। अच्छा अच्छा तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले ही 16 से लेके 18 तक उसने मैसेज करे, मेरे से बात चलती रही 16 तारीख को, 17 अच्छा अच्छा 16 और 17 को। तो मैंने कहा वो यहाँ पर ना कहता कोई केरला से कोई बंदा आया है मेरे पास, हाँ, तो पंचकुला होता हुआ आया है, हाँ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी चाहता हूँ मैं। तो मैंने हाँ, कहा यहाँ पर जो वो बता रहा है प्रॉपर्टी, उसके रेट तो बढ़ने वाले नहीं है। तो हाँ, असली बात तो ये थी कि जो 6-7 साल पहले बात हुई थी मेरे रमेश से, वो कह रहे थे कि चलो अब मैं ना रिटायर होना चाहता हूँ, तो इंद्रेश के साथ ना हाँ, पंचकुला कह में रहे थे एक बार तूने बताया छः था। सात हाँ हमने बताया भी था, तो 6-7 साल हाँ पहले ना। तो फिर हाँ इंद्रेश, मैंने कहा मैंने जवाब सीधा तो आपसे दिया, मैं क्योंकि पॉजिटिव हुआ तो सर, फिर मैं कहा ऐसा है ना, अभी इंद्रेश की शादी करनी है, समझे ना, हाँ अभी ये काम नहीं है ठीक। रिटायर होकर मैं इंद्रेश के साथ चला जाऊँ, ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भगवान करेगा पैसा होगा तो ले लेंगे, देखेंगे तब। हाँ तो ये मैं तो शुरू हाँ से पॉजिटिव हूँ, देखो शुरू से रहता हूँ मैं तो, किसी से हाँ गलत ठीक बोलता बात है नहीं। और क्या। तो वो 6-7 साल बीत गए, बात तो कभी होती नहीं। तो उसने कहा होती नहीं। कि मैं इन्वेस्ट करना हाँ चाहता हूँ, मैंने कहा वाकई इसके दिमाग में यही बात है। मैंने कहा नहीं हाँ चाचा जी, ऐसे नहीं है, हम लेना चाहते हाँ थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी अच्छी जगह करेंगे, पहाड़ी इलाके में हाँ करेंगे जहाँ अब बच्चे जा सके, घूम सके, ठीक है ना। हाँ इन्वेस्टमेंट का हाँ क्या मतलब, जब पैसा है तो ऐसी जगह पे करेंगे। यहाँ तो ट्रैफिक कितना हो गया, दिल्ली जैसा बुरा हाल है, सीधी सी बात है। हाँ, बुरा हाल हो गया। आपको छुट्टी में हाँ दिलासा दूं कि प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, अभी तो मान लिया चलो 10,000 रुपये गज हो गया है, हाँ कल को 10 का 11 भी ना हो, आप मुझे बोलोगे। बाकी आपने रिस्क लेना चाहते हो, आपकी वाकई जान बचाना तो ले लो। हाँ तो कह रहा नहीं, एक बंदा मेरे फैक्ट्री रोज आ जाता पीछे पड़ता हुआ मेरा, है इसलिए हाँ फोन कर रहा हूँ, है। तो फिर मैंने अगले दिन सोचा फोन आया, तो मैंने सोचा इसीलिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रुक के करूँगा मैं, हाँ। समझे नहीं। तो फिर मैंने वो चाची कह को रही थी अब फोन हमने बधाई का करा था ना, जब जब बधाई का जब तीन पहले दो इन्होंने जब सुना था, फिर बधाई कह का रही थी जब 4 4 जून की दिन शादी है। जब 2 दिन बीत गए, 3 दिन हाँ 3-4 दिन हाँ बीत गए उस बात को, तो फिर हाँ मैंने चाची से पूछा, मैं कहा कोई प्रॉपर्टी का लेने का नहीं सोच रहे थे? चाची से हाँ कंफर्म कर लिया। मैंने कहा ये तो झूठा, एक किसी का विश्वास नहीं करता मैं, परिवार में सारे तो झूठे हो नहीं सकते ये भी। फिर मैं चाची कहती नहीं, प्रॉपर्टी का तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा रिश्ता कब तय हुआ ये बताओ मुझे बस, तब मैं आगे हाँ, बात करूँ। कहते रिश्ता अभी परसों ही हुआ है। तो मुझे विश्वास हो अच्छा, गया कि वो कैसे हुआ है, अचानक ही फोन आया। मैं कहा हाँ, फिर मुझे विश्वास हो गया कि वो प्रॉपर्टी का कोई चक्कर नहीं है। फिर इसके लिए हाँ, फोन करा, और वो 11:30 फोन आया था, 2:30 बजे 2 बजे मैंने शाम को 7 बजे बात भी कर ली। पहले अच्छा हाँ, अच्छा मैंने 9 बजे बात करी। मैं कहा जब घर पहुंच जाएंगे ना, चाची का अच्छा तो आया ही नहीं, हम्म, तो रमेश चाचा का आया था। तो रमेश चाचा अच्छा को मैं कॉल बैक करा नहीं, मैं को फैक्ट्री से कर रहे होंगे, अब घर पहुंचेंगे तो वही करूंगा, हाँ ठीक है और क्या। क्योंकि एक ही बार सबसे बात हो जाएगी। हाँ तो घर पहुंचे ना तो आवाज नहीं आ रही, जैसा आपको फोन कट जाता है ना। तो हाँ तो मैंने कहा कि ऐसा है ना, आप फोन एक बार बाहर ले जाओ, सिग्नल पूरे आ हम्म, जाएंगे ना, तो फिर बात करते हुए वापस आ जाना, हम्म, फिर आपसे भी बात हो जाएगी, चाची से भी। तो कहते ये बात सही है। फिर बाहर आया, वो सिग्नल ठीक हुए, फिर मैंने उसको पहले तो उनको मुबारकबाद दी, बाप है जो पहले बहुत बड़ी मुबारकबाद दो। फिर मामा को हम्म, दे दी, और क्या इंद्रेश को दे दी। इंद्रेश ने कहा हाँ चलो अच्छा है, तेरी तो इंद्रेश से बात होगी, मेरी होती हमने तो आना नहीं। ही आना है, पक्की और बात मैं है। शर्म आती है, मैं तो बस हैं? खाली जो फोन करता है उसे बधाई दे दी। तेरा नहीं अच्छा मैं बराबर, तो तो वैसे देखो, इंद्रेश को हमारे इतना तो प्यार करता है दोनों तरफ शुरू से से ही। रिश्ता हो गया ना, उधर से टिंकू की मासी का लड़की होगी। हाँ मासी की लड़की है ना। हाँ मासी की पोती मासी होगी, की लड़की, मासी की दोती हुई दोती ना। हो गई, वही बेला की, हैं?
बेला पता की नहीं ये बहन, सीमा की है किसकी है, मुझे नाम नहीं पता। सीमा, 3 बहनें बेला, हैं ना, ये सीमा, बेला और ज्योति, तीसरे का नाम नहीं पता। ज्योति की है, ज्योति की। हाँ ज्योति की, तीसरे का नाम ज्योति है। सीमा बेला तो दिल्ली में रहती है। वो ज्योति जब सुंदर विहार में आई थी ना, हाँ 1993 4 6 की बात है। अच्छा अच्छा 1996 की। मैंने अभी बीएससी करी थी, बीएससी तो 95 में करी थी, 96 में करी। अच्छा जी, तो अच्छा 96 में क्यों, 91 में आई जब ये अनीता, अनीता हाँ 90, वही अनीता की नई नई शादी हुई थी, 92 उसकी बात है, 93 की बात है। अच्छा अच्छा। ये 93 की बात है, अनीता की शादी 92 में हुई थी ना, तो 1 साल बाद तो हुई थी। तो अनीता कहती हमें तो है, बस तेरी शादी तक अब याद है, तेरी कब हुई तो थी? अनीता 99 अनीता में। ना ज्योति बस से बाकी मिल के सब आई अब है। भूल गई, दिमाग खत्म हो गया। तो अनीता ना ज्योति से मिल के आई सुंदर विहार में ना, तो इसका ज्योति से याद मिल के रखो। आई, उससे काफी देर बैठी रही। मैं कहा दीदी कहाँ गए थे? कह रहे ज्योति आई हुई थी, मैं उससे बात करी। तब ज्योति छोटी थी ना, अच्छा अच्छा 11th में बात करते, 11th में पढ़ती थी। तो कहती है उससे मिला। मैं कहा क्यों मिल गया हूँ, मुझे क्या लेना? कौन कहती है? अनीता कहती है मैं क्यों मिल के आऊँ, मुझे क्या लेना उससे? कौन कह रहा था? अनीता, अच्छा अनीता। आपकी बहन। तो मैं फिर मिलने ओ, गया, मैं मिलने गया तो थोड़ी देर बैठा रहा, मैं चला गया। तब तो इतना छोटा था तू, 91 में, 92 में। तो वैसे ही बोल रही थी वो तो। हाँ वो तो वैसे ही मजाक करते थे, ये ही नहीं करते थे जो रानी की बेटी को मिला, उससे देख कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, और क्या। वो कितनी सुंदर लग रही है वैसे। वो तो बुआ मेरी कहती थी, वो तो बुआ शिवा भी बोलती रहती थी उससे मिला। वो तो सारे मेरे सारे खानदान में सबकी आदत थी। वो कहते थे, मजाक। वो चाचा ही बोलते थे मोनिका देख कितनी सुंदर लग रही है, उससे बात कर। अच्छा सबसे बात करते रहो, मैं बताओ, मैं जब अपने आप शादी करने को अपने आप कर लूंगा, मैं किसी हाँ, नहीं तो मना कर देता था। फिर उस टाइम तो बड़ी मोटी थी वो ज्योति, तो पता नहीं अब अच्छा एक है कृष्णा, कृष्णा मासी की भी लड़की थी। कृष्णा, जो आप पहले बोल वो रहे थे कृष्णा मासी नहीं थी, वो मम्मी के चाचे की लड़की कृष्णा, उसकी बहन। हाँ सही कह रहे हो, उसकी लड़की थी। कृष्णा की बहन थी वो। बहन नहीं, लड़की। वो कृष्णा की लड़की तो सपना अलग थी ना, वो तो अलग थी। वो तो कृष्णा की लड़की सपना थी, उससे वो कृष्णा नहीं बुआ बोला, की थी उससे ना। उससे कभी नहीं बोला। एक मासी थी कृष्णा, मम्मी की नहीं, बहन थी वो तो गोपाल चाचा की, कृष्णा, वो गोपाल की बेटी है, गोपाल तो मामे बहुत नाथ close की थी। बहन वो तो कृष्णा। बहुत क्लोज हो गए ना, वो उनके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं बोला। गोपाल की भी शुरू से ये दूर के रिश्ते जाते हैं जितने, उनसे ही बोला है, ऐसी बात नहीं, मम्मी की मासी की लड़की भी थी एक, वो भी, वो हमारे पीछे पड़ गए थे। तू नाम का ना कर देता था सबके साथ, बड़ी जल्दी आने लगे थे रिश्ते। मम्मी की मासी की लड़की थी कृष्णा। मैं पता क्या कहता था, मैं साइंटिफिक बात करता था, मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरे आने वाले बच्चों में डिफेक्ट आ जाएगा, जेनेटिक डिफेक्ट। हाँ हाँ, तो कृष्णा ये थी क्या मम्मी की मतलब होता मासी की है? लड़की। अब उनको ये पता वो नहीं बड़ी था सुंदर थी। हाँ, वो गरीब थे बेचारे। हाँ, वो अपनी लड़की का कहती थी। डैडी की, मम्मी की मासी का मुझे नहीं पता, वो मम्मी की मासी की लड़की कृष्णा थी, उसकी लड़की थी। अच्छा वो दीनानाथ की बहन, वो तो गरीब लोग हैं। हाँ, दीनानाथ की भांजी थी। वो है तो सारी, वो भी सुंदर थी, ये बात नहीं है ग्लोब वालों की, मैंने बात नहीं, ये बात नहीं है, खराब सुंदर सारी थी, मैंने नहीं, मैंने कभी हाँ करी नहीं। हमारे तो एक भी नहीं आई संजू। हाँ मैं बात ही नहीं करते तो क्या करें किसी से। अपने अपने आप ही ढूंढनी पड़ी, एक जिया जिया ढूंढ ली आपने, और क्या चाहिए? मगर उसे अपने आप ही ढूंढनी पड़ी। अपने आप ढूंढने सही रहता है। तेरे पैसे देख के सारी आ जाती थी सब तरफ से। कैसे देख के बात नहीं, मेरे तो अभी बीएससी करनी थी, मैंने तो बीएससी से पहले पूछते थे ना। हाँ, बीएससी की पहले बातें हैं। उसके और बाद ये सब पहले की बात है, वो तो सब मजाक ही हाँ, करते हैं। सब पहले बातें, मजाक है, छोटा था। आप नहीं कहते थे वो, आप भी तो कहते थे एक लड़की आएगी, ये पॉलिथीन लेने आएगी, अभी थोड़े देर बाद उसको देख लियो, नजर मार ले, लियो। एक बार तो मेरे घर में आया था, सुन। हाँ 2000 कब की बात थी, 98 में मेरा मकान बन रहा था, 98 में। पड़ोसियों ने अपनी लड़की भेज दी, जा देखा। हाँ मुझे वो याद आ है। गई थी मेरे मैंने नहीं घर देखा में। उसको, मैंने नहीं देखा वो। अब लिफाफा मांगने की वजह से, पॉलिथीन मांगने की, वो भी पॉलिथीन मांगने आई। मैं वो भी वो नजर मारा हूँ। मैंने उसे कहा ना जीना से, तू तो 5 फुट की, हमारा भाई 6 फुट 2 इंच है। उसने फिर भी अपनी लड़की को भेज दिया, जा। वो मेरे घर आ गई ऊपर बांधने से, लड़की को भेज दिया, जा देखा। मैं तो मैच्योर था, मैंने मम्मी को कहा, मैं कहा देख इसने वैसे लड़की को बच्चों के भेज साथ दिया। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी मैं तो मैच्योर था, सीधी सी बात है। मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, कोएड में, मैं तो मैच्योर था, मुझे पता था ये लोग ज्यादा टेम्पटेड है, शादी जल्दी करना चाहते हैं मेरी, और सब चीज अंदर से अच्छी फीलिंग है, मैं तो कुछ कहता नहीं था।
मैं तो इसलिए अलग अलग बहाना बना देता था मैंने, क्योंकि समय से ही करनी थी मैंने, तो पहले मतलब नहीं था। और 99 में हुई है, 98 में वो आ गई हमारे घर में। स्कूल कॉलेज में इतनी लाइन मारती थी लड़कियां, मैं क्यों किसी को, सीधी सी बात है। कॉलेज बाद में ना उसको भी बॉबी नाम का लड़का मिला, फिर बड़ी कॉलेज अच्छी में थी, मुझे मैसेज वो पहुंचाते भी मिला। मैं कहा, अच्छा मुझे कॉलेज में मैसेज पहुंचाते रही दूसरे दोस्तों के थ्रू। मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं, मैं कभी मैंने पढ़ना है मेरा अपने फिर कीर्तन से पूछती थी मैं सीधा तेरी कहता हूं, मुझे मम्मी फैमिली कैसी का है, बिजनेस तेरी मम्मी कैसी है। एस्टेब्लिश करना है, मुझे मेरा गोल वही है। मेरे जो चाचा जी मुझे कहते थे फैक्ट्री जाना है, बस पढ़ लिख के फैक्ट्री जाना है, पढ़ लिख के फैक्ट्री जाना है, बस एक ही बात बोलते थे। मैं भी अपने दोस्तों को यही बोलता था, मेरा गोल वही है, मुझे फैक्ट्री अपने सेट करनी है। मेरा ज्वाइंट बिजनेस है, मेरे चाचा डैडी का ज्वाइंट बिजनेस है, मैंने वही सेट करना है। अभी मुझे समय चाहिए, जब मैं 1-2 लाख महीना कमाऊंगा तब करूंगा शादी। सीधा यही बोलता। बाकी ये बात नहीं है कुछ। अब मेहुल को वैसे ही बुलाया कंपनी वालों ने, बाहर सेट होएगा। कुछ में वाकई दुख होता था कि गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, निकल गया समय क्या। ये तो दिल से खुशी हुई है, चलो इंद्रेश की ये तो कोई बात नहीं, ये तो दिल से खुशी हुई है। बदल के 4 जून की शादी भी कह रहे हैं गर्मी में। सही, चलो अच्छी बात। 4 जून की। वो लड़की वाले कहते हैं भाई, मैं नौकरी करती है ना लड़की की मम्मी, वो कहती है मुझे मई जून में छुट्टियां होंगी, मैं आगे पीछे नहीं कर सकती। जॉब करती है ना, वो टीचर है। अच्छा, क्या एज उसकी है? मैं हमने एज पूछा नहीं, छोटी सी लग रही है, इतनी बड़ी थोड़ी है, बस पता नहीं चलता होएगी 25 साल की तो होएगी, 25-26 की। दृश्य काफी बड़ा है। बता रहा हूँ 17-18 साल की होगी उस टाइम 91 में, मेरे से एक दो साल छोटी होगी, तो वो भी इतनी ही होगी, फिर भी 18-19 साल की होगी। कितने? 21 साल की होगी, और क्या 22 साल की से ऊपर नहीं हो सकती। नहीं, इतनी बड़ी होगी, ऐसे थोड़ी 22 साल की होगी। कितनी होगी पता नहीं हमारा। अच्छा अच्छा, वो तेरे से काफी छोटी थी। अच्छा, जब मेरे से छोटी है वो, तो कैसे बच्चा, उसको कैसे हो जाएगा बच्ची को, या कोई और होगी, या तो गलती आपके साथ तो ठीक लगा रहा है। या तो कोई और होगी दीदी फिर वो। शादी तेरे साथ, तेरे जैसे तुम्हारी हुई होगी ना, वैसी हुई होगी तभी इसकी। हाँ तो हमारा बच्चा भी 23-24 साल का है, मेहुल। तो वो भी इतना ही होगी ना, 23। हाँ, इतना ही होगी, और 24-25 की मेहुल जितनी होगी, और क्या। 23-24 साल की होगी। हमारा मेहुल तो इतना ही है ना। हाँ, इतनी ही होगी वो लड़की, शादी बड़ी नहीं लड़कियों की होगी। जल्दी हो जाती है, जल्दी कर ली होगी। हाँ, उसका तेरे से पहले शादी होगी, 25 साल की होगी, और क्या 26-25 ऐसे ही होगी। ठीक है। आपने देख लिया लड़की सुंदर है? मुझे तो, मैंने तो पता नहीं चलता आजकल, क्या पता लगता है। जैसे नीलू के दांत है ना, बस वैसे है, तो थोड़े से शायद आंख में लग रहा था, पक्का नहीं पता। नहीं, इसकी बहनें तो सारी सुंदर है। सीमा ने देखो कितनी सुंदर है। सीमा, बाल बेला, सारी सुंदर थी, सारी सुंदर थी। नानी पर ही शक्ल है, नानी जैसी है। नानी तो देखी हुई है, सरोज चाची की बहन। सरोज चाची की बहन देखी नहीं, चंचल, कलकत्ता वाली। हाँ, नानी पर ही है। मम्मी पर ही होगी, नानी पर ही। थोड़े दांत ऊंचे हैं, बस थोड़ी आंख का लग रहा था, आगे पता नहीं। से आते रहते हैं, बचपन से ही आते हैं वो तो तिलक नगर में। आते तो ना, थोड़ा बहुत कमी होगी, तभी करी होगी, थोड़ी करी। नहीं, बचपन से ही आते हैं। कह रही थी, बड़े खुश हो रहे थे, चाची कह रही थी हम तो बचपन से आते थे, हमें पराया घर लग गया, हम तो यही आते थे। सरोज चाची से पूछा उन्होंने, इधर कर ले, उसने कहा कर लो। नहीं, ये सुरेंद्र उसका सगा भाई है। सुरेंद्र मामा? हाँ, मम्मी का मामा हुआ ना, मम्मी का भाई ना, माँ का मामा हुआ ना, सगा भाई है लड़की का। लड़की की माँ का मामा है, लड़की की मम्मी का मामा है सुरेंद्र। लड़की की मम्मी का मामा है ना। कैसे? भाई तो उसका था चंचल का, चंचल की बेटियों का तो मामा ही हुआ ना। हाँ, जैसे तू ईशा का मामा है, ऐसे है वो। चंचल की बेटियों का मामा, जैसे ईशा की लड़की हो। तो चंचल का ही तो बोल रहा हूँ, भाई हो गया ना। हाँ, चंचल का भाई है, सगा भाई है ना। हाँ, सगे हैं। तो चाची की बहन ने तो कराया होगा, चाची की बहन उधर ब्याही हुई है ना, चाची की चाचे की लड़की सीमा। चाची ना, चाची और हो गए ये सब, इनके हो गए, ये शुरू से कनेक्टेड है, आज से थोड़ा ना कनेक्टेड है ये लोग। ये सब कनेक्टेड है फेसबुक से। अच्छा अच्छा। और फेसबुक से ये फ्रेंड से आज से नहीं, कम से कम ये हो गए 2010 से। तो
वो सीमा वगैरह का तो मैंने देखा नहीं, फेसबुक में पता नहीं क्या। हाँ, फेसबुक से सब रिश्तेदारों को पता लग जाता है। अरे वीडियो कॉल ही करी है हमने, नहीं ये फिर वो शुरू से लड़की वाले कनेक्टेड आ है, गए। जैसे वो टेक्सास में जाता है तो ये इनको सारा पता है कि भाई उसको जैसे टेक्सास में गया, वो इनसे बातें सारी शुरू से रहती हैं। ये सोनीपत में जब ये सोनीपत से कॉल करते हैं तो ये फेसबुक में सारा कुछ देखते हैं। ये विजय हो गए, सुरेंद्र हो गए, और सोनीपत में पैसा भी बहुत लगाया हुआ है ना इन्होंने, हरकेश ने। किसने? हरकेश का पैसा बहुत लगा हुआ है सोनीपत में, और इंद्रेश का भी सारा इसमें 15 नंबर में भी है उसका हिस्सा। अच्छा 15 नंबर सुभाष नगर में पूरा हिस्सा है उसका, आधा डैडी ने दे रखा था। अच्छा, इंद्रेश का? इंद्रेश का तो पैसा सारा फंसा पड़ा है ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि चाचा जी ने, रमेश चाचा जी ने तिलक नगर में बहुत पैसा लगाया था, ऑफिस बनाया था। तो वो मकान जब मतलब हिस्सा लेने के बाद भी पैसा लगाते हैं तो उसमें फिर हिस्सा बना रहता है ना फिर। अच्छा अब अच्छा, जैसे जो तुमने मर्जी अपना करे हिस्सा भाई ले क्या। लिया, अब जैसे चाची सरोज जो रिश्ता करा रही है उसने अपना हिस्सा ले लिया समझ लो तिलक नगर में। उसके बाद रमेश दूसरा भाई उसी प्लॉट में पैसा लगाता है 25,000 रुपये। उस टाइम 25,000 बहुत होते थे। वो तो छत बनाई, सारा कुछ, उसका ऑफिस बनाया। एक बार हिस्सा लेने के बाद तुम खर्चा करते हो किसी चीज में तो वो तुम्हारा भी हिस्सा फिर रहता है ना उसमें। बात करवाना नहीं चाहिए था ना, कराने को दिया। अब तेरी प्रॉपर्टी है, तू अपनी प्रॉपर्टी पर वैसे किसको खर्चा करने दे, करने क्यों देता है? वैसे दिया तो है घर पे तुमने। इकट्ठा था ना, खर्चा तो इकट्ठा ही था हमारा। देखो हिस्सा तो 7 तारीख को बराबर बंटता था ना। वो तो 1997 तक बराबर बंटता रहा। ये बात कर रहा हूँ मैं 1990 की। अच्छा अच्छा। अब वो पता नहीं वो टिंकू के नाम कर दिया है, और वो जो दिसंबर का है शायद टिंकू साइन कर देगा शायद, मुझे लग रहा है कर देगा। अरे करना ही पड़ेगा, बहन को दे रहा है शादी तो करेगा नहीं। बहन को क्या दे रहा है? अब बहन को शादी हो रही है, बहन को भेज रहा है वहाँ इंद्रेश के यहाँ। बहन ही है ना उसकी एक तरह की, मासी की बहन लड़की। को कहाँ भेज रहा है? कौन सी बहन को भेज रहा है? अरे मासी की लड़की बहन ही होती है ना। मैं ये मोनिका मासी बहन की ही, लड़की बहन होती है? बहन की लड़की है, भांजी है उसकी, इंद्रेश भांजी की, भी बहन उसकी ही होती है टिंकू ना। की। मासी की लड़की की बेटी है। हाँ तो बहन ही होती है। आगे बेटी की अभी मोनिका है, जैसे जैसे मुरादाबाद वाली। हाँ तो आगे उसकी बेटी। तो बेटी भी आगे बहन की बेटी ही होगी ना, बहन ही होगी ना वो। हाँ, बहन की बेटी भांजी। भांजी होगी ना, बहन हो बहन जी को क्या हो गया उसमें। भांजी हाँ। बहन को तो कोई गलत बोला, जो भी है बहन को भेज दे तो शादी तो मतलब कर रहा है तो फिर उसका कर रहा है अगर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो हुआ ही होगा ना, कोई सेटलमेंट ऐसे थोड़ा ना। तो क्या पता हमें क्या जरूरत है, जो मर्जी करे। वो प्रॉपर्टीज दे का ना तो दे। वो प्रॉपर्टीज की बात से तो बात ही शुरू करते हैं ना वो। ये पंचकुला में ले लो मकान, अच्छा बात ही ऐसे शुरू करी। मुबारक रिश्ते की बात उसने बाद में करी। अच्छा। और क्या कह रहा हूँ आपको, इतनी देर से कहानी रामायण पढ़ रहा हूँ। मैं तो शायद पहले कभी करी हो। पहले कोई नहीं करी, मुझे नहीं पता। पहले तो शायद 8 साल पहले 8 करी साल हो गए हो। बात। बड़ी पहले करी हो, मकान वहां ले लो। तो 8 साल हो गई बात। हाँ, 8 साल जहाँ पहले मर्जी। बात करी हुई और 2 दिन पहले बात करी हुई, कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती। और तो और सुना, पेपर नहीं मिलता। गाड़ी लेना कोई होता है 8 साल पहले अलग है। अब 8 साल पहले लड़की कहाँ थी, क्या कर रही, पढ़ रही थी, क्या थी। विपन नहीं मिला अभी। विपन कहाँ मिलता है, विपन मिलता मिलेगा तो वहीं मिलेगा पहाड़गंज में, और कहाँ मिलेगा। हाँ, और कौन मिले? तो में मिलता है, मिलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलेगा, या दुकान में। मनमोहन जो मोहन अंकल की डेथ पे मिला, आगे कृष्णा बुआ जी की डेथ पे मिला, अभी मिला थोड़े दिन पहले प्रेम चाची की डेथ पे। अभी महीना साल भी कहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा। दिसंबर की। अब आया था वहाँ, इन्हें मिला था। फगवाड़े गए थे ये शादी में। इनकी बहन की ना पोती की शादी थी। यही है पोती की। शिवम मिला था। बिट्टू नहीं है, राजीव बिट्टू जो जज है, उसकी लड़की की शादी थी। शिवम मिला था, शिवम, अंशु, शिवम, ये सब। शिवम? अच्छा, कहाँ मिला था? प्रेम चाची की डेथ पे। अच्छा अच्छा। एडिडास में काम कर रहा है ना गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। जूते बेचता है ना, जो अमेरिकन कंपनी है एडिडास। हाँ, फिर वहाँ आया हुआ था विपन फगवाड़े में, शादी में। उन्होंने बुलाया होगा ना विपन को भी। कब की बात?
अभी अभी हो के आए हैं, हफ्ता भी नहीं हुआ। डेट का क्या थी मैं भूल जाती हूँ। अभी हुए हैं, पिछले मंगलवार की शादी थी। आज क्या वार है? कल मंगलवार आना है। हाँ। फिर वहां विपन रुक गया रात, फिर अमृतसर गया अगले दिन गुरुद्वारे। गुरुद्वारे हो गया है। मतलब हफ्ता हुआ है? हाँ, हफ्ता ही हुआ है। हाँ, सो मंगल की शादी थी, कल हफ्ता होगा। तारीख मैं भूल गई हूँ क्या थी। आप में से कोई भी नहीं गया, सिर्फ जिया ही गए बस? और जिया जी और प्रमोद दीदी, मैं मेरे से चला नहीं जाता। चिड़िया चूड़िया ट्रेनों में कहाँ चढ़ू, इतना रश था। जिया तो दूसरी टिकट लेकर टीटी को पैसे देकर चले जाते हैं, और वैसे रिजर्वेशन होती कहाँ, 15 दिन पहले कराई थी, हुई नहीं। पंजाब में हो जाता है, जी फगवाड़ा में, पंजाब। हाँ, आती बार 25 की शादी थी। हाँ 25 की, 24 को गए थे। वो इसी बार फरवरी काउंसिल की, का अब मार्च आ गया ना, फरवरी 25 फरवरी। बार काउंसिल में होगा ना? हैं? बार काउंसिल में होगा। पता नहीं क्या नाम था। चाचे का लड़का है ना? इनकी बहन का लड़का, बहन का उसकी भी लड़की थी। फगवाड़े में तो वो था, पैलेस था, नाम तो भूल गई। अंदर और बने होते हैं, इन्हें नाम पता है मुझे। चंडीगढ़ में भी तो मकान है ना उनका? 4 मोड था अंदर, उनके अंदर पैलेस का नाम कुछ और था। अंदर 3-4 नाम उनके अलग अलग रखे हुए। पैलेस का नाम कुछ वो और भी था। गीता भाभी नहीं सारा गई? ही फगवाड़े में, हाईवे पर। गीता भाभी को नहीं ले गया? किसको? गीता भाभी को? गीता को नहीं ले गया, विपिन अकेला गया था। हाँ, अकेला गया था। हाँ हाँ। उसने कर ली बेटी की शादी, बच्चों की कर ली? किसने? बच्चों की नहीं, कह रहा पत्री नहीं मिलती, पत्री नहीं मिलती। नहीं मिलती होगी, पत्री नहीं मिलती, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके भी तो। देख तो रहा है, पत्री नहीं मिल रही, यही चक्कर है बड़ा। चलो आना तो। उसको पत्री हैं? तो पता है पत्री क्या होती है? विपिन को पता है पत्री, विपिन का काम ही यही है, पत्रियां मिलाना। चलो उसको तो सिर्फ आना दवाइयों दवाइयों का में। ज्ञान है उसको, जो दवाइयों जो पापा जी बता गए वही ज्ञान है उसको, दवाइयों का। अच्छा। हरिद्वार में नाम है उसका। अच्छा हाँ, तो है ही है। हरिद्वार में जो सुनील के पास जाओ ना तो वो बताया, उसको जानते हैं अपन। हाँ, वो अपने तो हरिद्वार। दादाजी को कम भूल गए धीरे धीरे, और अपनी बिरादरी किसको? में जाती नहीं। अब जुलाई में गया तो सीधा विपिन का नाम लिया, दरवाजा खोलते हैं वो। क्या बोलती हूँ? अपनी बिरादरी में तो मेरे सिवा कोई जाता ही नहीं चिन्नौड़ भवन अब। तू भी तो जाता है चिन्नौट भवन में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे सिवा तो कोई जाता ही नहीं अब। मुझे तो मैं भी गई हूँ, मैं भी तो गई हूँ। कब? जून में, जब विराज के मुंडन कराए थे। तो अब तो धीरे कमर्शियल हो गया ना, होटल टाइप हो गया। बाकी वो उनको बोलना पड़ता है, विपन विपन का भाई हूँ, चाचा। अच्छा ना, होटल टाइप को नहीं हो गया अब तो। पता नहीं वहाँ खाना खुना मिलता है, 1100 रुपए का कमरा, खाना तीनों टाइम फ्री। तो फिर नया आ गया ना, एक नया बंदा आ गया वहाँ पर, एक वही पहाड़गंज का। मना थोड़ी करते हैं, देना दे नहीं देते मना हैं, नहीं करते, मना नहीं करते। पहाड़गंज का नया बंदा आ गया वहाँ पर, एक वो हाँ। केयर टेकर। अच्छा बेचारा उसका अच्छा डिवोर्स अच्छा हुआ तो पता नहीं वो बीवी को छोड़ के वहीं चला गया था कोरोना में, अच्छा अच्छा। वो हाँ, जानता नहीं था मुझे। कमरे खाली तो दे देते हैं वैसे। हाँ, तो देते हैं पैसे के बेस पे, तो क्या वो 1100 रुपए लेते हैं एक कमरे का, आपने 1100 और दिया? रोटी 3, हाँ 3 टाइम रोटी। मैं तो कोई नहीं देता 1100, मैं 4 दिन रहा, 600 रुपये 500 रुपये दिया। अच्छा, तेरे को जानते होंगे, हमारे तो 1100 लिए। मैं तो वो भी ना दूं मैं तो। अच्छा, मर्जी है। 250 तो आगे 250 ही देते थे। हाँ, अब रोटी फ्री कर दी ना, अंदर लेने, अंदर ही खा लो, नाश्ता भी, दोपहर की रोटी भी, रात की रोटी भी। मैं तो, हाँ उनको पता है हमारा पैसा लगा हुआ है वहाँ पर। हाँ, पहले 250 लेते थे, वो बढ़िया था। उतनी रोटी बाहर की लग जाती थी। अच्छा, हिसाब तो बराबर ही रहता था। तो उनको पता है मगरू बिलादरी का पैसा लगा हुआ है, वो मेरे से नहीं लेते, ये बात नहीं मैं कह रहा। वैसे जब मैं हाँ बात कर रहा हूँ, कोई नया बंदा हो तो उसको बोलते हैं विपन मेरे बुआ का लड़का है, बस और कुछ नहीं। अच्छा। ये बात बोल रहा हूँ, और बाहर को नहीं कहाँ ले जाते हैं। हाँ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वो 1100 रुपये जो अलग 1100 क्या देने ही पड़ेंगे उनको, कोई भी जाएगा तो। वो गर्मी थी ना बड़ी, एसी वाला कमरा था, भैया ना तो लेने ही थे। वो एसी वाला कमरा है फिर। वैसे दूसरे के तो 500 ही होंगे। कुछ नहीं लेते। कुछ नहीं देते? अच्छा, जो मर्जी दो। ठीक, रश होगा ना तब जून में। तो वही बात है। हाँ, यही बात होगी, खाली नहीं थे खाली नहीं थे? ना, खाली नहीं थे, कहीं भी रश था ना।
तो मैं तो जुलाई में गया था, आपने बताया तो नहीं? जून में गया हूँ। बताया था तो भूल गए, मैंने बताया था। कुछ नहीं बताया था। बताया ये तो ना बोला था और बाउंड में रहे थे। मैंने तो कहा, मैंने ये कहा था रमित को, आपने कहा था वहाँ पर शिवरात्रि रमित में ठीक कहाँ है, हम भुगत रहे हैं, रमित कहाँ ठीक है। क्यों? सबसे बेचारे कमरों में बंद बैठा रहता है, उसको वहम हो गया, सब मुझे गाली देते हैं, अगला पिछले सब गाली दे रहे हैं, वो वहम हो गया, फिर डर लगता है लड़ाई का। अब कहाँ पर है? ठीक, वैसे वैसे बैठ रहता है कमरे में, उठता कहाँ। आज कुछ बाइक ठीक कराने गया है, आज केतन गया नहीं, संडे थी, छुट्टी थी, केतन ने शादी भी जाना था, वैसे भी आज पेट खराब, तब भी किया, हमने कहा चला जा। मुझे मुश्किल लगे हुए पड़े, फिर भी हिम्मत आला है, निकल जाता है, परवाह नहीं करता। बाहर काम नहीं निकलता है, ना सत्संग जाता है ना कहीं, अंदर ही बैठा रहता है। उसको बाइक भी नहीं होती, वो हम केतन चला रहे हैं ना, जब से केतन जॉब कर रहे हैं। हाँ, मैं तो जब आया था तो ठीक था। नहीं, वो ऑफिस में से ऐसे ही है। वो आया तो वो बताता है, वहां भी मुझे गालियां मिली हैं। कहाँ पर? वहां पर वो, इसे पता नहीं चलता, कोई मानता ही नहीं। अगर ये किसी को कह देना साथ वाले को गाली दे रहा, साथ वाला कहता नहीं दे रहा, फिर ये गुस्सा कर जाता है। कहाँ पर गाली मिली? तो कोई भी नहीं देता, ऐसे ही कहता है, देता कोई भी नहीं। कह रहे सुकुमार देवी मुझे गालियां मिली हैं, मुझे घूरते हैं सब। कहाँ की बात कर? कोई भी नहीं। हाँ, अब भी कह रहा था, हम गए थे ना विराज को लेके सुकुमारा देवी, अब भी कह रहा था, आपको पता नहीं चलता दी है। अच्छा अच्छा, ब्यास में जाता तब कहता है, हर जगह से कहता है देते हैं देते हैं, हमने कहता है अच्छा। अगर हम कहते ना नहीं दिए तो कहता है मुझे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो ठीक, परेशान ही है। नहीं जाते थोड़ी है, बैठ रहता है अंदर ही। क्या कर सकते हैं। मैच्योर बंदा है, ऐसे थमना वगैरह मेरा खर्चा होता है मामा जी, मैं ऐसे जगह जगह जाके अपना पैसा के बर्बाद करूँ, मेरा हार्ड एंड मनी। हाँ, ऐसे तो सही, अब नहीं जाता, पहले तो रोड आता था, अब जा रहा था पीछे, अंबाले जा रहा था, ब्यास जा रहा था। अभी मैं 2 दिन रहा हूँ तो उसके साथ ही रहा हूँ। साइकिल पर आया था ना, बाइक फेंक दी। जब साइकिल पर आया था ना, तो 2 दिन उसने सारी कहानी अपनी जिंदगी की सुनाई है मुझे। उसके बाद वो चला गया अपना साइकिल पर। अब अंबाले जा रहा था, भाग गया, अंबाले में फिर बाइक फेंक दी, वो तो किसी पुलिस वाले ने देख लिया, उसने उसको झाड़ा भी, 500 रुपए भी दिए। ये शादी पर थे, वहाँ फोन करा, ऑमलेट खाना है, हमने ये खाना है, चलो मेरे साथ। उनको तो, उसको तो खाने पीने का भी नहीं है, एक बार उसको कोई लालच नहीं किसी चीज का, बस दिल का अच्छा है, खुद जाएगा अपना पैसा खर्च करेगा, दिल का अच्छा है। चलो क्या कर सकते हैं। यहाँ भी आया तो खाना खिलाया उसको, बाहर से हमने ना थाली मंगा दी, तो कहता मामा जी मुझे तो फिर भी रात को भूख लगती है। कोई बात नहीं, हो जाए तो अभी तो लगती है इसको रात। कूलर चलाया, नीचे जमीन पे सो गए उस दिन, क्योंकि कूलर नीचे लगा हुआ था ड्राइंग रूम में, ऐसे तो खराब है मेरा, तो जमीन पे अगले पिछले रात को 2:30 बजे उठ गया, कहता मामा जी मैं तो स्टेशन पे जा रहा हूँ खाना खाने। मैं कहा घर में कुछ और बना देता हूँ, कहता घर में सब उठ जाएंगे। मैं यहाँ में नहीं करता, मैं कहा तेरे को वहाँ पर रास्ते में चलान कर देंगे तेरा। अच्छा, साथ चलता हूँ, पैटी खिलाई उसको, रात को सैंडविच खिलाया वहाँ पर। मुझे कहता भूख लगती है, दवाई खाता हूँ। कोई बात नहीं, आप देखो लोगों को नॉर्मल लगता है, जो अपना ध्यान रखते रखो, उसमें क्या बात है। नहीं, यहाँ भी भूख लगती है ना, हमें नहीं उठाता, कुछ बड़ा होता है ठीक है, नहीं बड़ा होता ऐसे भी सो जाता है, बंद बूंद मंगा के रख लेता है। यहाँ भी ऐसे करता है, हमें नहीं उठाता, पहले रोटी खाता नहीं, बाद में भूख लगती है, जो पहले खा लेता सो, या बनवा के रख ले, बनवा के नहीं रखता, ऐसे पड़ी रहती है, फिर बनवा के रख दो तो ऐसी पड़ी रहती, मर्जी वाला है। और रात को सोएगा तो भूख अपने आप नहीं लगेगी, तुम रात को सो जाओ फिर क्यों भूख लगेगी। और दिन में सोए रहो 6 बजे तक, ना दिन का नाश्ता ना दोपहर की रोटी, फिर अपने आप भूख खत्म हो जाएगी। नहीं देखो मुझे तो वहाँ पर ले गया, एक दिन कह रहा घुमाता हूँ आपको, इतनी दूर साइकिल पे आया, बाइक पे ले गया वहाँ पर, कहता है ये पीर बाबा भी अंदर है, गुरुद्वारा भी अंदर है, मंदिर भी अंदर है, चर्च बहुत अच्छी जगह लेके आया। अंदर पीर बाबा भी था, गुरुद्वारा भी, मंदिर भी, खुली जगह सारी, एक ही रास्ते पर है, सारी जगह मत्था टेक को। मेरे भगवान तो एक ही, इसमें क्या बंद बैठा हुआ। बाकी तो मुझे तो कोई ऐसे बात करता नहीं, ये जरूर कहता है कि परिवार मेरा एहसान नहीं मानता, मेहनत मैं करता हूँ और एहसान नहीं मानता। मैं ना परिवार क्यों नहीं एहसान मानता, क्या जो बात उसको लगती है उसको बताया नहीं नहीं, मैं नहीं करता।
वो से कहते हैं वो 3 साल से वो कर रहे हैं दोनों। एक उम्र हो जाती है तो फिर यार ऐसा लगता है इंसान को। कह रहे पहले मैंने करी है ना, कोई एहसान कर ले। 45 का हो, कितने साल का हो गया? 48 का हो गया होगा, 45 का। हो गया होगा, अब क्या उम्रों का हाँ, हिसाब तो लगाना है। एक टाइम पे तो इंसान को लगता ही है ना। बुढ़ापा ज्यादा अकेला परेशान। बुढ़ापा तो नहीं जिनकी हुई है वो भी अकेले जैसे, जिनकी नहीं हुई वो भी अकेले जैसे। नहीं, वही वो अलग बात है, लेकिन जो कर्मों में है वो तो भुगत नहीं है। शादी हुई नहीं अलग बात होती है। जो परिवार के लिए इंसान कंट्रीब्यूट करता है वो एक टाइम तक सुनाना शुरू कर देता है, कोई भी हो। उसमें कोई गलत नहीं लगता। आप लोगों को गलत लगता है, उसको गलत नहीं लगता। एक सीधा नहीं गलत नहीं होता, शादी के लायक होते तो शादी करती थी। शादी की बात है, शादी की बात अलग है कि वो कह रहा है कि मेहनत मैं करता हूँ तो परिवार मेरा एहसान नहीं मानता। शादी की तो बात नहीं करनी है। वो ऐसे कहते हैं, कहता नहीं, परिवार से प्यार ही बड़ा करता है। जो उसको टेंशन है ना वो इसी चीज की। वेतन ठीक है, दिया ठीक है। हाँ ठीक है। वो घर से ही काम कर रही है। घर से कर रही है, आज संडे है, छुट्टी है। मुझे तो कह रहे थे 1 साल बाद मैंने तो जॉब ढूंढनी है, चेंज करनी है। कौन कह रहा था? 2 साल पहले कह रही थी जॉब मुझे। जी हाँ, नहीं घर में यहीं करेगी, बाहर कहाँ जाएगी? आप भी तो बता रहे थे इंटरव्यू का क्लियर हो गया, लेकिन अभी नहीं बाहर नहीं जाएगी। वेतन की भी जॉब ऐसी है, बड़ा मुश्किल ही है। बड़ी जॉब मुश्किल होती है, बेकार होती है प्राइवेट वाली भी। जॉब तो मुश्किल होती है। उसने कहीं और पकड़ी बेचारे ने, वो हफ्ते में पता लग गया वो फ्रॉडी है, कहीं और पकड़ ली, हफ्ते में पता लग गया फ्रॉड है, फिर उसने छोड़ी। वो तो अच्छा हुआ पुरानी वालों ने फिर रख लिया। अरे अब अभी ऐसा एक जाल बन चुका है जो जॉब का, तो उसमें सब उलझ चुके हैं, पूरी फैमिली लालच देते हैं, 60,000 तनख्वाह है, हफ्ते में पता लग गया फ्रॉड है, हफ्ता करी नहीं फिर छोड़ दी फटाफट। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। दोबारा मेहनत इतनी है उसमें, काम पल्ले से करना पड़ता है, ना करो तो फिर छुट्टी तनख्वाह भी नहीं आती, आधी तो पल्ले से लगानी पड़ती है। तुम्हारे वो रमेश पुण्य के हालात है ना, जो वो देश के हालात हैं, वो आप ये ना सोचो कि आपको चलो रखरी विराज को संभालना पड़ेगा। आ गया, पता नहीं क्या तंग करते हैं ये बच्चे बड़े। गली वाले बच्चे भी आ जाते हैं, ये भी तंग बड़ा करता है बार बार। ठीक है, फिर बाद में बात। क्या हुआ?